Our respected speaker is Professor, Department of Political Science, AMU Aligarh. His specializes is strategic studies. He also has a keen interest in electoral studies and Muslim politics in India. His work has been published in journals like the Roundtable, the Commonwealth Journal of International Affairs, Economic and Political Weekly, Seminar, Humanities and Social Science Review, Studies in Indian Politics, South Asian Studies, Studies in Islam, Foreign Affairs Reports, and Indian Journal of Politics, etc. Dear audience, he has written one book and edited 3 volumes. He was a visiting scholar in a Fulbright program at Southern Illinois University in 1999. He is a fellow of the Salzburg Global Seminars, Australia. Respected Biggs is on the additional board of several international journals and has been a referee to quite a few journals. And he is the coordinator of UP West for the academic surveys conducted by the Center for the Study of Developing Societies. So I want to say you are a knowledgeable and a great personality. Respected sir, your contribution in the field of education continues and we are all eager to listen you. Sir, I again express my gratitude on behalf of all of us. Sir, please. जी, thank you, Dr. Thank you, Niveen. Niveen. Thank you so much, sir. We'll today be talking about certain important values which are important for students as well as teachers when they interact in the classrooms and even outside. So yes, sir, sure. I was basically thinking of talking about certain basic constitutional values because I'm a student of politics, so I'll try to focus on those constitutional values which should form the basis of our interactions in the classroom. It's important for teachers to know these values, to appreciate them, and of course, unless we know them, we will not be able to impart these values to our students. So these are some values which are mentioned in the preamble to the Constitution of India. देखिए, कोई भी किताब आप पढ़ते हैं तो किताब का एक प्रीफेस होता है. कोई अच्छी किताब आप देखें तो उस किताब का जो प्रीफेस होता है वो किताब के बारे में अगर जैसे ही आप प्रीफेस पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इस किताब में क्या बात कही गई है, कौन से मेन आर्गुमेंट्स हैं, क्या इश्यूज डिस्कस्ड हैं. तो जो प्रीफेस है वो एक जिस्ट प्रोवाइड कर देता है उन चीजों का जो किताब के अंदर. वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक प्रियम्बल, और प्रियम्बल जो है इट एनकैप्सुलेट्स ऑल द मेन वैल्यूज विच रन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स विच impact or which have rather roots in all articles which are there in the Constitution of India. So if one were to understand the Constitution of India, one needs to understand the values which are the basis of all articles mentioned in the Constitution of India. In this time, we cannot discuss all those values, but I'll talk about a few very important ones, and basically focusing on the first important value to emphasize, its importance, how important it is for the Constitution, for us, and for implementing those values in the society. So, to start with, the Constitution of India talks of making India a secular, socialist, democratic republic. तो पहला वर्ड जो इसमें आता है वो है सेकुलर वर्ड. इस वर्ड को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज इन इंडिया इफ यू go in the public sphere, you look at newspapers, discussions on TV, and maybe in social media, there is so much of confusion that I'm sure most of you would be quite confused as to what this means and what it actually is.
So therefore it is very important for us to appreciate the importance of this word in the constitution. In social sciences, most of you are from education, you understand that whenever we have to understand the meaning of a term, so we are not like natural sciences, where things are very specific, very quantitative. In social sciences, things are quite subjective. So when you have to understand the meaning of any term, any important term, you have to go, because that is the jurisprudential rule. It's not that I am saying this. It is the rule that if you have to understand the meaning of a term and there is a controversy on the meaning, some people are saying it means this, some others say something else, as it happens in the discourse in our country. So what you need to do is to go into the background, into the context of the evolution of that term. जब आप उस किसी भी टर्म के एवोल्यूशन, जहां से वो पैदा हुआ, दुनिया में जिस जगह उसका ओरिजिन हुआ, जिन हालात में उसका ओरिजिन हुआ, वो हालात उस टर्म को मीनिंग देते हैं। और जब वो टर्म यूनिवर्सल हो जाता है तो उसकी एक्चुअल मीनिंग वही मानी जाती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मुल्क में कोई उस मीनिंग को चेंज कर दे कि साहब नहीं, हमको ये पसंद नहीं, ये मीनिंग ये हो। तो यूनिवर्सल लेवल पर उस मीनिंग को नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी मीनिंग तो वही है जो उसकी ओरिजिन ने उस टर्म को दी। अब आप अगर उससे एग्री नहीं करते हैं तो आप कोई नया टर्म बना दीजिए, कोई नई चीज बना दीजिए, लेकिन आप उसकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अक्सर क्लास में एग्जांपल्स दिए जाते हैं, आप सब टीचर्स हैं तो एग्जांपल से जरा बात क्लियर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है एक टर्म, हम सब जानते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ये भी हम सब समझते हैं। लेकिन कल अगर कोई आदमी या कुछ लोग या कोई देश ही सही, चाइना वाले कहने लगे कि साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप इलेक्शन होगा लेकिन उसमें एक ही पार्टी होगी और उसका एक ही कैंडिडेट होगा, क्योंकि हमें पहले से पता है कि यही बेस्ट कैंडिडेट है और सबको उसी को वोट देना है, और जो भी होता है वहां वो उसको कहें कि डेमोक्रेसी यही है। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर कहे कि साहब डेमोक्रेसी यही है, तो दुनिया में कोई इसकी बात मानेगा? लोग कहेंगे नहीं साहब, डेमोक्रेसी तो वही है जो सारी दुनिया मानती है। आपको कोई और नई चीज बनानी है तो आप बना दीजिए, कह दीजिए चाइनीज डेमोक्रेसी ये है, कोरियन डेमोक्रेसी ये है, कहीं की डेमोक्रेसी आप बना दीजिए। लेकिन डेमोक्रेसी जो टर्म है, क्योंकि वो यूनिवर्सल टर्म, पूरी दुनिया उसकी मीनिंग को जानती है और मानती है, और उसका एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो मीनिंग उसको मिली है, तो उसका मतलब नहीं चेंज हो सकता। आपको नहीं पसंद है तो मत रखिए डेमोक्रेसी को, जबरदस्ती थोड़ी है कि आप डेमोक्रेटिक बने। बात समझ गए? वैसे ही सेकुलर वर्ड है कि इसका एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म का उदय हुआ, ये ओरिजिन हुई इसकी, तो उस कॉन्टेक्स्ट को जब हम समझेंगे तो हमारी समझ में आएगा मतलब क्या है और हमारे यहाँ इसकी क्या अहमियत है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूँ जिससे आप उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि कहाँ से वो टर्म है। देखिए, ऐसा था कि अर्ली मिडिवल पीरियड में यूरोप के अंदर एक ऐसा टाइम आया जब अराउंड द 5th सेंचुरी, कि जब रिलीजन जो है समाज में उसकी पकड़ मजबूत होने लगी। रिलीजन तो वहां था ही, और आपको पता है यूरोप में उस वक्त सारे लोग ऑलमोस्ट क्रिश्चियंस थे, तो क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन वहां पे था। लेकिन उस जमाने में धीरे धीरे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से रिलीजन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगा, मतलब लोग अपनी जिंदगी में रिलीजन को ज्यादा अहमियत देने लगे, रिलीजियोसिटी बढ़ने लगी। और जैसे जैसे रिलीजियोसिटी बढ़ने लगी वैसे वैसे उन सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स, जो पादरी, क्लर्जीमैन, चर्च लीडर्स थे, उनकी अहमियत बढ़ने लगी। और ये हर जगह होता है, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हेनेवर religion will become more important for the people who control religion, they will become immediately powerful. Why? Because religion is something, any religion, Christianity, Hinduism, Islam, whatever, all religions are based on faith. Faith in whom? Faith in God. हम सब जो रिलीजन किसी को भी मानते हो, हम गॉड में यकीन रखते हैं, और हमारे फेथ के अंदर एक इनहेरेंट चीज है जो कहीं नहीं जा रही, लेकिन जो समझने की है, जो हम सब जानते हैं कि साहब गॉड जिसमें हम सबसे ज्यादा यकीन रखते हैं, उस गॉड से हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, न उसको देखेंगे। गॉड से हम अगर मिलेंगे तो मरने के बाद मिलेंगे।
मतलब कहने का ये है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फेथ है उससे हमको कभी नहीं मिलना है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो लोग हमें गॉड से कनेक्ट करते हैं, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे कम एंड टेल अस एंड वी ऑल यूजली एट द प्रैक्टिकल लेवल बिलीव दैट दे विल हेल्प अस रीच गॉड। तो अगर गॉड से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है और गॉड की के करीब जाना है, उसकी कुर्बत लेनी है, तो हम अक्सर उन रिलीजियस लीडर्स को अहमियत देते हैं या उनके करीब हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं गॉड तक जाने में। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि सब एक तरह होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि दोज रिलीजियस लीडर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर आवर लिंक टू गॉड। नाउ व्हाट हैपेंड in Europe, that as religiosity grew, those religious leaders started getting more and more important. And as they became more important, they became more powerful because people started believing them and they started convincing the people, as quite often happens, that we are in direct communication with God. तो आपको गॉड से कोई बात कहनी है तो हमें बताइए, हम गॉड तक पहुंचा देंगे, और गॉड आपसे जो कह रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो ये चीज इतनी बढ़ी धीरे धीरे कि लोगों का फेथ जो है, वो ब्लाइंड फेथ उन रिलीजियस लीडर्स में इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बहुत ही पावरफुल हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो बात आपसे कोई कह रहे हैं तो गॉड की बात है, आप उसको नहीं टाल सकते। तो वो आपसे हर चीज गॉड के नाम पे कह रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि पावर इतना उनको मिल गया कि वो उनके अंदर बहुत करप्शन भी आ गया इन जनरल, और वो उस पावर का मिसयूज करने लगे। हर तरह की ऐश और आराम और अय्याशी और करप्शन उनके अंदर आ गया, और यहां तक बात पहुंच गई कि दे स्टार्टेड सेलिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ हेवन, कि अगर किसी इंसान को स्वर्ग में और जन्नत में जाना है तो हमें पैसे दे, हम उसे सर्टिफिकेट दे देंगे, वो आपकी कब्र में रख दिया जाएगा मरते वक्त, और जब आप गॉड से मिलिएगा तो उनको दिखा दीजिएगा तो वो आपको हेवन में डाल दें। मतलब ये सारी चीजें यूरोप में हो रही थी। और जैसे जैसे पावर रिलीजियस लीडर्स का बढ़ा, वैसे वैसे मुल्क के जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उनका पावर घटा, क्योंकि पावर ऐसी चीज है वो कुछ ही के पास रहेगा, सब थोड़ी पावरफुल हो सकते हैं। पावर तो एक बड़ी स्कैर्स कमोडिटी होती है समाज में। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे रिलीजियस लीडर्स का पावर बढ़ता गया, ये सी सॉ की तरह है जो बचपन में स्कूल में आप जिस पे बैठते थे, ये वाला इधर ऊपर जाएगा तो ये वाला नीचे जाएगा। तो जैसे जैसे रिलीजियस लीडर्स का पावर बढ़ा, वैसे वैसे जो स्टेट लीडर्स थे उनका पावर घटता चला गया। वो बेचारे, क्योंकि वो तो इंसान थे, लोग उनसे सवाल करते हैं कि भैया हमें सड़क बनाओ, हमारे ये दो और ये काम करो, और उनसे नाराज होते हैं, उनको बुरा समझते हैं। लेकिन ये लोग तो एकदम पाक साफ थे, क्योंकि ये तो रिलीजियस लीडर्स है, ये तो कह रहे हैं हम तो जो भी बात कह रहे हैं वो गॉड की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, हम अपने दिल में से थोड़ी कुछ कह रहे हैं। तो वो बादशाह को भी ऑर्डर देने लगे, तुम ऐसा करोगे, नहीं करोगे तो हम लोगों से बता देंगे कि साहब गॉड ने ये कहा करने को, और ये बादशाह जो आपके मुल्क का वो तो कर ही नहीं रहा ये बात। तो किंग्स जो थे वो भी बेचारे एकदम कमजोर हो गए। तो ये प्रोसेस जो यूरोप में करीब 1000 साल तक तकरीबन चली, उस पीरियड को यूरोपियंस खुद अपनी हिस्ट्री का डार्क एज कहते हैं, क्योंकि वो पीरियड जब था जिसमें यूरोप, जो हमेशा से मॉडर्न पीरियड में दुनिया के अंदर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में सबसे ऊपर रहा है, वो 1000 साल का पीरियड ये था कि यूरोप मुस्तकिल नीचे जा रहा था। क्योंकि जब फेथ डोमिनेट कर गया समाज में, तो हर तरह की साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक इंक्वायरी, हर तरह की क्वेश्चनिंग सब बंद हो गई। क्योंकि फेथ का मतलब होता है ब्लाइंड फेथ, फेथ एक्चुअली इज ब्लाइंड। फेथ में सवाल नहीं पूछा जाता। तो आप हमारे ऊपर फेथ करते हैं तो फेथ करिए, नहीं करते हैं तो मत करिए, उसमें सवाल नहीं पूछा। तो उस तरह का सारा जो डेवलपमेंट और साइंटिफिक ग्रोथ यूरोप में चल रही थी, वो सब रुक गई और सब नीचे चली। और वो 1000 साल का पीरियड ये था जब दूसरी सिविलाइजेशन, खासतौर से ओटोमन सिविलाइजेशन जो थी, टर्की से निकली, वो डोमिनेट करने लगी, और वो लोग यूरोप तक पहुंच गए। यूरोप के काफी हिस्सों पर उन्होंने हुकूमत भी कर ली, उनको जीत भी लिया, और यूरोपियंस पीछे हटते चले गए। तो अराउंड द 15th सेंचुरी, मतलब आई एम कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अराउंड द 15th सेंचुरी यूरोपियंस स्लोली केम टू रियलाइज कि साहब जो हमारी बर्बादी हुई है, इसका मेन वजह यह है कि हमने रिलीजन, जो कि बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट चीज है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि पूरा समाज उसी से कंट्रोल हो रहा है, और वो रिलीजियस लीडर्स इतने पावरफुल हो गए। तो वहां पर एक मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत से मूवमेंट शुरू हुए, और उन सब के लिए एक नाम कह सकते हैं आप उसको, कि वो मूवमेंट था सेक्युलरिज्म का। आज हमारे देश में भी किसी से भी आप पूछिए, पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो जानते हैं, जो
बायस नहीं भी हैं, उनसे पूछिए सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, तो कहेंगे सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। एक्चुअली उसका मतलब ये नहीं है, ये किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस है। और इसी को समझाने के लिए मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट दिया है कि देखिए यूरोप में जो मूवमेंट शुरू हुआ वो किस बात पे शुरू हुआ। यूरोप में मूवमेंट ये शुरू हुआ कि साहब अभी तक जो पिछले 1000 सालों से हमारे यहाँ जो चीज सामने थी वो था फेथ। फेथ का ताल्लुक आपके यकीन से, मतलब आप किसी में फेथ करते हैं, आप गॉड में फेथ करते हैं। जब आप गॉड में फेथ करते हैं तो जैसे मैंने अभी कहा, आप सवाल नहीं पूछते, वो ब्लाइंड फेथ है। मतलब आपने गॉड को कभी देखा नहीं और कभी देखेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा फेथ हमारा गॉड में। तो फेथ इज नेसेसरली ब्लाइंड। उसके दूसरी तरफ जो चीज है वो है रैशनैलिटी। तो यूरोप में ये मूवमेंट चला कि साहब फेथ एक पर्सनल प्राइवेट चीज है, कोई फेथ माने या ना माने, किसी मजहब में आप यकीन रखिए ना रखिए, ये आपकी पर्सनल चीज है, ठीक है, फाइन, उसमें कोई उनको कोई शिकायत। उनका ये कहना था कि जो पब्लिक लाइफ, जो स्टेट अफेयर्स है, उनमें जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो रैशनैलिटी होनी चाहिए। सो दैट वाज द मूवमेंट टू फोरग्राउंड रैशनैलिटी इन द पब्लिक स्फीयर। जो पब्लिक स्फीयर है उसमें जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो रैशनैलिटी होगी। तो पब्लिक स्फीयर में किसी को कोई बात बतानी है, मुझे आपको कन्विंस करना है, तो मुझे वो बात रैशनली प्रूफ करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं मान जाएंगे या आप ऐसे नहीं मान जाएंगे। तो लोगों को ये सिखाया जाएगा या लोगों को सिखाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि लोग हर चीज को उसको एक्सेप्ट करें जो उनकी अकल जिस चीज को माने। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो हमने माना। तो पब्लिक स्फीयर में हर बात वो मानी जाएगी जो रैशनैलिटी पर खरी उतरे। रैशनैलिटी मीन्स 2 + 2 = 4। तो कोई भी बात आप मुझे ऐसी बता दें जो 2 + 2 = 4 की लॉजिक पर उतर रही हो तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि फना ने ये बात कही है और फना बहुत बड़े आदमी उन्होंने कही है या फना रिलीजन के बहुत बड़े हमारे लीडर हैं उन्होंने कही, उससे मतलब नहीं, कही किसने इंपॉर्टेंट नहीं, बात क्या है वो इंपॉर्टेंट। तो ये कहा गया यूरोप में कि साहब पब्लिक स्फीयर में, पब्लिक लाइफ, पब्लिक स्फीयर क्या है, जब आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप जो कुछ भी सुबह से शाम तक करते हैं उसका असर दूसरे इंसानों की जिंदगी पर पड़ता है, वो है पब्लिक लाइफ। चाहे आप टीचर हो, मैं सड़क साफ करता हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हम सब जो भी काम करते हैं उसका असर दूसरे इंसानों की लाइफ पर पड़ता है। तो दैट इज पब्लिक लाइफ, दैट इज द पब्लिक स्फीयर। और मेरा घर है, उसके अंदर मैं जो चाहूँ करूँ, मेरा फेथ है, मैं उसको फॉलो करूँ नहीं करूँ जैसे करूँ, किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका असर किसी पे नहीं पड़ता। लेकिन अगर फेथ को लेके मैं घर के बाहर आ जाऊंगा तो मेरे इस ब्लाइंड फेथ का असर दूसरे इंसान पे पड़ेगा, तो वो चीज ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पब्लिक स्फीयर में जो चीज फोरग्राउंड होनी चाहिए, जो चीज स्टैब्लिश होनी चाहिए, वो है रैशनैलिटी ऑफ थॉट। सो सेकुलरिज्म एक्चुअली मीन्स रैशनैलिटी ऑफ थॉट, कि हर इंसान की सोच जो है वो पब्लिक स्फीयर में रैशनल होनी चाहिए, वो सब पे बराबर है। आप किसी भी धर्म को फॉलो करें कोई बात नहीं, जब घर से निकले तो ये वाली खिड़की खोलनी है, रैशनैलिटी। किसी भी बात को तब मानना है जब वो रैशनल हो, आपकी अकल में आ रही हो, आपकी समझ में आ रही हो। इसलिए नहीं मानना है कि फला साहब ये कह रहे हैं और फला चीज मैं मानता हूं, फला चीज नहीं मानता, वो आपकी पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड। तो ये जो मूवमेंट था ये रैशनैलिटी को फोरग्राउंड करने का मूवमेंट था, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि रिलीजन पॉलिटिक्स को अलग कर दिया। समझ में? तो एक 1748 में एक ट्रीटी हुई यूरोप में जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसके कॉन्सिक्वेंस में कई चीजें डिसाइड हुई, और एक चीज ये डिसाइड हुई कि जो बादशाह होगा, जो रूलर होगा, उस जमाने में किंगशिप चलती थी यूरोप में, कि जो भी रूलर होगा किसी मुल्क का वो अल्टीमेट अथॉरिटी उसके पास, सारे अफेयर्स वो चलाएगा, मुल्क की हुकूमत वही करेगा, कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, सब कुछ वो करेगा। और रिलीजियस लीडर्स अगर हैं तो उनका उनका रोल जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड है, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके काम करने का सारा तरीका किस पे बेस्ड है? फेथ पर, जो रैशनैलिटी का एंटीथेसिस। So this was the way, in which secularism arose. So secularism basically was a movement of rationality. And this idea appealed to people everywhere in the world, across the world. So therefore, Americans, when their constitution came into being, they adopted secularism. Or any country, which was born and which was fortunate enough like us to be democratic, we all adopted secularism as the guiding principle. तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखते हैं तो बहुत से लोग
पॉलिटिशियंस के होता है कि आपको बिला वजह की बहस में उलझा देते हैं, कि बहुत से लोग आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, कोई कहेगा सेकुलर वर्ड तो पहले नहीं था, बाद में डाल दिया। वर्ड था या नहीं था उसकी कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को पढ़ लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल इज इन्फॉर्म्ड बाय दैट सेक्युलर स्पिरिट। और क्या सेक्युलर स्पिरिट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कोई आर्टिकल आपसे ये नहीं कहता कि ये बात मानो या ऐसा करना है, नहीं, हर चीज की लॉजिक है। सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आपके दे कम ट्रू ऑन द टच स्टोन ऑफ लॉजिक। नथिंग इज लाइक दिस दैट दिस इज समथिंग गुड सो we should do this. No, everything is logically put, everything is rationally put, everything is informed by the spirit of secularism. So secularism is a concept, or secular is a concept which runs through every article of the constitution. But I'll come to that why the political class quite often is against secularism. Those who say that they are supporting secularism, they are also against it. And those who say that they don't like it, they are actually against it. Fine, but everybody is against it. तो सेकुलरिज्म में कौन सी ऐसी चीज है जो सब लोगों को बुरी लगती है? मतलब हमारे आप जैसे आम आदमी को नहीं, हमें तो बताया जाता है कि इसको बुरा समझो। क्यों पॉलिटिकल क्लास जो है वो सबको ये बुरी लगती है? हम अभी आएंगे इस पे, तो आप से उस पे बात होगी कि क्यों ऐसा है, why they don't like this, why they don't like anything to be explained on the basis of rationality. अच्छा ठीक है साहब, ये तो एक कॉन्टेक्स्ट हो। अब आप हमारे देश में देखें तो सेकुलरिज्म के अभाव में, या सेकुलरिज्म की एब्सेंस में, या सेकुलरिज्म के मार्जिनलाइजेशन की वजह से हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या हैं, पहले जरा उन पे ध्यान देते हैं थोड़ा। अगर आप देखें आमतौर से हमारे समाज में, तो 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे देश के सामने है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मैं 4 को आपके सामने रख रहा हूं। एक है कम्युनलिज्म, एक है कास्टिज्म, एक है रीजनलिज्म, एक है लिंग्विज्म। आप सब जानते हैं कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और पूरे देश में किस तरह से हम सब इससे जूझ रहे हैं, इन प्रॉब्लम से। अब थोड़ा मैं इस पे बात करता हूं कि सेकुलरिज्म, सॉरी, ये सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली हैं क्यों? अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इतनी ज्यादा विशाल हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम कैसे बन गई है, कैसे मुस्तकिल ये है? व्हाट आर द रीजंस फॉर द सस्टेनेंस? अब मैं एक धीरे से उसको थोड़ा सा अनपैक करता हूं, तो आप थोड़ा सा वो अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को। देखिए ऐसा है कि कम्युनलिज्म फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, बात सबकी एक ही, लॉजिक सब में एक ही है। कम्युनलिज्म आप सब जानते हैं कि हेट्रेड और एनिमिटी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कि मैं आपको सिर्फ बुरा इसलिए समझ रहा हूँ, हेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप किसी दूसरे धर्म से, जैसे भी हूँ मुझे इससे मतलब है, और आपको भी इससे मतलब नहीं मैं कैसा इंसान हूँ, क्या हूँ, बस सिर्फ मैं दूसरे धर्म का हूँ, इतना काफी है एक दूसरे से हेट्रेड करना। उसको कहते हैं कम्युनलिज्म। अब आप इसको जरा अंदर जाके देखने की कोशिश करिए। कम्युनलिज्म इज हेट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब हमारे देश में अगर आप किसी से भी पूछें, आप सब इसी देश में रहते हैं, जानते हैं, आपको शायद बहुत कम लोग मिले जो किसी धर्म में यकीन नहीं रखते। हमारे देश में ज्यादातर लोग रिलीजियस हैं या किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, या कहते हैं कि मैं किसी रिलीजन को फॉलो करता हूँ, जो भी रिलीजन हो। अच्छा ये भी आप सब जानते हैं, समझदार पढ़े लिखे हैं, कि हर रिलीजन की जो बेसिक वैल्यूज हैं, टीचिंग्स हैं, वो सिमिलर है। हर रिलीजन ये आपसे कह रहा है कि अच्छा इंसान बनो, दूसरे इंसानों से मोहब्बत करो, किसी के सामान को मत चोरी करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सारी अच्छी अच्छी बातें। तो अगर आप लॉजिकली सोचें कि हम सब धार्मिक हैं, जितने लोग हैं समझ लीजिए पूरा देश है जो हम इस क्लास में बैठे हैं, 30 लोग, हम सब 330 140 करोड़ बैठे हैं यहाँ पे, तो हम सब धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, और हम सब के रिलीजन चाहे अलग अलग हों, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं अच्छा इंसान बनो, एक दूसरे से प्यार करो। तो despite all of us being religious, despite all of us having those good teachings of our religions, still we generally, quite a lot of us, tend to hate each other in the name of religion. तो ऐसा क्यों है कि हम सब धार्मिक हैं, हमारे धर्म हमको अच्छी बातें सिखाते हैं, फिर भी अक्सर हम में से लोग धर्म के बेसिस पर एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, या हेट्रेड क्यों करते हैं, या वायलेंस क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? लॉजिकली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होता बहुत रीजन से, मैं एक रीजन आपके सामने रखता हूं। देखिए एक चीज होती है लव
अफेक्शन, आप सब जानते हैं, लव इज अ वेरी गुड फीलिंग. We love our family, we love our friends, we love our children, we love our elders. It's a very positive thing. There's nothing wrong with love. But love का एक हायर फॉर्म क्या है? ऑब्सेशन. आप सब जानते हैं ऑब्सेशन क्या होता है. When you get obsessed with something. अक्सर आप अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज में देखते हैं कि फला लड़का फला लड़की से शादी करना चाहता था, लड़की ने मना कर दिया, तो लड़के ने उसको गोली मार दी या उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया. तो हम आप तो मैं चाहे उसको पूरी तरह नहीं समझ रहे हो, लेकिन अपेरेंटली समझ रहे हैं. लेकिन लॉजिकली कितनी अजीब सी बात है कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, जिसे मैं इतना पसंद करता हूँ, उसे मैं गोली कैसे मार सकता हूँ या उसके मुंह पे एसिड कैसे फेंक सकता हूँ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो ये हुआ क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली लव से ऊपर पहुंच गया, मैं ऑब्सेस्ड हो गया उस लड़की से या उस इंसान से. और ऑब्सेशन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है, वो बड़ी नेगेटिव फीलिंग जनरेट करती है. और उस नेगेटिव फीलिंग की वजह से इट बिकेम इजी फॉर मी टू किल दैट गर्ल और शूट हर. क्योंकि वो नेगेटिव फीलिंग ये है कि मतलब इफ आई एम नॉट एबल टू मैरी दैट गर्ल, शी शुड नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड. तो बेसिक बात क्या है कि ऑब्सेशन एक नेगेटिव चीज या हेट्रेड जनरेट करता है. तो एक पॉजिटिव फीलिंग जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट कर सकती है अगर उसको सही से मॉडरेट न किया जाए. उसी तरह की चीज हमारे रिलीजियोसिटी में होती है अक्सर. जब हम अपनी रिलीजियोसिटी को, जो बहुत अच्छी चीज है, बड़ी पायस चीज है, अगर हम सब ट्रूली रिलीजियस हो तो हिंदुस्तान तो जन्नत बन जाएगा दुनिया में. लेकिन हम क्योंकि अपनी उस लव को, उस अफेक्शन को फॉर आवर रिलीजन एंड फॉर आवर को रिलीजनिस्ट्स, जो हमारे अपने धर्म के लोग हैं, उनके लिए जो हमारा लव है उसको हम सही से मॉडरेट नहीं कर पाते. और अक्सर वो ऑब्सेसिव बन जाता है और वो हेट्रेड जनरेट कर देता है. और उस हेट्रेड के जनरेट करने से क्या होता है कि हम अपने धर्म को और अपने धर्म के मानने वालों से, जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, उनसे मोहब्बत कम करते हैं दूसरे धर्म से, और उनके मानने वालों से हेट्रेड ज्यादा करते हैं. ये कैसे प्रूव होता है? अक्सर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे या मीडिया में एल्सवेयर, जो भी लोग किसी भी धर्म के, बहुत से लोग, सारे नहीं, बहुत से लोग जो अपने को दिखाना चाहते हैं कि मैं इस धर्म का बहुत बड़ा लीडर हूं या इस धर्म का बड़ा रखवाला हूं, वो क्या करते हैं? कभी ये नहीं कहते कि मैं फला धर्म से और फला धर्म के मानने वालों से बहुत प्यार करता हूं, आओ सब लोग मिलकर अच्छा काम करें. नहीं, वो हमेशा हेट्रेड की लैंग्वेज यूज करते हैं. वो दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं. और जब वो जहर उगलते हैं तभी उनको नोटिस किया जाता है, और तभी बहुत से लोग हम में से ताली बजाते हैं कि हाँ भाई, ये आदमी है हमारे धर्म का सही लीडर. तो क्या हुआ कि उसको अपने धर्म के लिए या धर्म को मानने वालों के लिए लव और अफेक्शन साबित करने के लिए हेट्रेड की लैंग्वेज यूज करनी. डिड यू गेट माय पॉइंट? So what happens that unless you use that language of hatred, nobody notices you as the leader of religion A or B. Only then you get noticed. And a lot of people appreciate you. Like, look, this person loves our religion so much. लेकिन वो इंसान लव की एक भी लैंग्वेज, एक भी शब्द यूज नहीं कर रहा. वो दूसरे मजहब पे हेट्रेड डाल रहा है या हेट्रेड की लैंग्वेज यूज कर रहा है, और उससे उसके क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं. सिमिलरली उधर के लोग भी, ऐसा नहीं किसी एक रिलीजन के लोग ऐसा करते हैं. तो क्या हुआ कि जो लव और अफेक्शन होना चाहिए था रिलीजियोसिटी की वजह से, वो रिलीजियोसिटी हमारी टर्न हो गई कम्युनलिज्म में. उसी तरह कास्ट आइडेंटिटी है. आप सबको पता है कास्ट इज लाइक रिलीजन इज ए मैटर ऑफ एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. लेकिन हमारे समाज में बहुत सी इस तरह की चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरी कास्ट सुपीरियर है, हरिंदर साहब समझते हैं कि इनकी सुपीरियर है, दूसरे साहब समझते हैं कि उनकी सुपीरियर है. और सिर्फ समझते नहीं है, धीरे धीरे एक लेवल पर वो चीज बढ़ते बढ़ते जब ऑब्सेसिव हो जाती है तो वो वहां पर भी हेट्रेड जनरेट होती है. तो कास्ट आइडेंटिटी विच इज अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, आपकी कोई आइडेंटिटी होगी, मेरी कोई होगी, कोई बात नहीं, हम सब आराम से रह सकते हैं. लेकिन नहीं, वो आइडेंटिटी टर्न्स इनटू कास्टिज्म. व्हेन यू स्टार्ट हेटिंग पीपल, denigrating people, discriminating against people in the name of caste. So religiosity turns into communalism. Caste identity turns into casteism. Regional identity, again, such a senseless thing. कि आप किसी रीजन के रहने वाले हैं, लेकिन नहीं साहब, हमारा रीजन ज्यादा है, मैं यूपी का हूँ, यूपी तो सबसे बड़ा है, तो सबसे अच्छे लोग यहीं के होते हैं, और फला स्टेट के लोग तो बड़े खराब होते हैं और वो ठीक लोग नहीं होते. और मैं यूपी का हूं तो हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो वही सबसे अच्छी लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेज को खत्म कर देना चाहिए.
तो जब हम डिस्क्रिमिनेट और हेट्रेड करते हैं ऑन द बेस ऑफ रीजन, इट टर्न्स इनटू रीजनलिज्म, लैंग्वेज, लिंग्विज्म। लॉजिक एक ही है कि इन सारी चीजों के अंदर वो हेट्रेड जनरेट हो जाती है, और उस हेट्रेड की वजह से वो एक आइडेंटिटी वाला इशू जो बहुत ही सिंपल है, आम है पूरी दुनिया में, कहीं हर सारे लोग एक तरह नहीं होते, किसी भी देश में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, एथनिक डिफरेंस हो सकता है, लिंग्विस्टिक डिफरेंस हो सकता है, कहीं कहीं कलर का डिफरेंस हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट, बट दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। But when you start on the basis or start discriminating or hating people or resorting to violence in the name of those things, that turns into, say, racism, communalism, casteism and so on. ठीक है। अब दूसरा सवाल ये कि चीजें तो होती हैं और हो सकता है कभी कभी हो, कभी ना हो, और धीरे धीरे ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है हमारे देश में कि ये सारी प्रॉब्लम्स रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती, और जैसे ही आपको लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की पड़ रही है, थोड़ा सा मामला ठीक हो रहा है, फिर वो ऊपर से बढ़ जाता है। तो कौन से फोर्सेस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके टेम्परेचर को कभी घटने नहीं देते, और ये प्रॉब्लम हमेशा इसके अंदर, इस आग में तेल डालते रहते हैं? कौन लोग हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इसमें जो हैं वो है पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर in the biggest game. What is the biggest game in any country? That is the game of acquiring political power. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इफेक्टिव चीज, सबसे इन्फ्लुएंशियल चीज समाज में पॉलिटिकल पावर होती है। हमारे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पावर के लिए सड़क पे लड़ाई नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, और जो जीतता है इलेक्शन उसको पॉलिटिकल पावर मिलता है। पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समाज में, क्योंकि जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है, सबको पता है। तो सबसे हाई स्टेक गेम पावर का गेम है, जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, लॉजिकली या नॉर्मली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है? पॉलिटिकल पार्टीज आर सपोज टू कम बिफोर अस एंड टेल अस देयर एजेंडा इन रिलेशन टू द रियल इश्यूज ऑफ आवर लाइफ। किसी भी कंट्री में जहां डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चल रही हो या नहीं चल रही हो, या ठीक नहीं चल रही हो, जैसी भी चल रही हो, आइडियली ये सिचुएशन होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने आए और आपको बताए एज पीपल ऑफ दिस कंट्री कि साहब हम जो हैं, हमारा एजेंडा ये क्या है कि हम आपके रियल लाइफ इश्यूज सारी दुनिया में एक है, ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई खास इश्यूज हो, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, ये आपके रियल लाइफ इश्यूज हैं जो हमेशा से हैं और हमेशा रहे। और पॉलिटिकल पार्टीज का काम ये है कि इन इश्यूज पर आपके सामने एजेंडा रखें, आप उसमें से देखें कौन सी पार्टी आपको पसंद है, आप किसी पार्टी को वोट दें। अगर आपको लगे कि 5 साल में उस पार्टी ने उन इश्यूज पे अच्छा काम नहीं किया तो आप दूसरी पार्टी को वोट दे दें। दिस इज द आइडियल सिचुएशन, बट द आइडियल सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज पॉलिटिकल प्लेयर्स, ऑल ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज ए कंट्री वेयर रिसोर्सेज आर लेस एंड पॉपुलेशन इज ह्यूज। हमारे मुल्क के अंदर रिसोर्सेज बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि कोई पार्टी ऐसी हो जो सचमुच रियलिटी में सोचे कि साहब हमें तो इन्हीं इश्यूज की बात करनी और इन्हीं इश्यूज पर काम करना है, तो क्या होगा? और ये सोचिए कि आपने उसको इलेक्शन में जिता दिया, तो 5 साल तक अगर वो पार्टी पूरी मेहनत से काम करेगी, पूरी ईमानदारी से काम करेगी, तो इन सारे स्कोर्स में वो फेल हो जाए, क्योंकि जॉब्स इतने हैं मुल्क में, अनएम्प्लॉयड इतने हैं, खाना इतना है, खाने वाले इतने हैं, दवाई इतनी है, हॉस्पिटल्स इतने हैं, मरीज और बीमार इतने ज्यादा हैं, सड़क बनाने का पैसा इतना है, सड़कें इतनी बनानी है। मतलब हर काम के लिए रिसोर्स बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो वो पार्टी जो एक्चुअली बहुत ईमानदारी से काम कर रही होगी और उन सारे इश्यूज पर आपको सेटिस्फाई करना चाहेगी, वो 5 साल में बुरी तरह फेल हो जाएगी, और शायद अगली बार और उसके अगली बार भी आप में से कोई उसको वोट न देगी, तो वही पार्टी है जो सुपर फेलियर है। बात समझ रहे? तो क्या सिचुएशन है कि इन दिस सिचुएशन, जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी, पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी का मतलब जहां पर मुल्क की जो पॉलिटिक्स जिस एटमॉस्फेयर में या जिस पब्लिक स्फीयर में ऑपरेट हो रही है, वहां पर रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। इसलिए अगर कोई चाहे भी तो भी हमारे उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता, पार्शियली भी पूरा करना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हमसे आपसे ज्यादा इन चीजों को जानती हैं। हम आप तो ब्रॉडली समझ रहे हैं, इनके पास पूरी स्टैटिस्टिक्स है कि एग्जैक्टली कितने रिसोर्सेज हैं और क्या काम है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि अगर हम इस रूल से चलेंगे तो हमको फेल ही होना है, चाहे इस वक्त ए पार्टी फेल हो, कल बी फेल होगी, कल सी फेल होगी, सब फेल होते जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया है बड़ा क्लेवरली कि इन इश्यूज को चेंज कर दिया, मतलब बल्कि उस मैदान को ही चेंज कर दिया। समझ लीजिए क्रिकेट के मैदान से वो फुटबॉल के मैदान में आ गए और उन्होंने नई तरह के इश्यूज ले लिए हैं जिनसे करना कुछ नहीं, जिनको कहते हैं आइडेंटिटी इश्यूज और इमोटिव इश्यूज, और जिनको टेक्निकली कहा जाता है स्यूडो इश्यूज, आर्टिफिशियल। मतलब वो इश्यूज नहीं है क्योंकि उनका आपकी लाइफ के रोजमर्रा की लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो आपको बताया जा रहा है कि मेन इश्यूज वही है। वो इश्यूज क्या है? वही जो मैंने चार आपको बताया, आपके आइडेंटिटी के इश्यूज, रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज। So political parties have all come to understand in our country that these are the best issues in which we don't need to do anything. We just need to talk to people through their identities and try to win elections. In one election, somebody is successful, in the next somebody else will be successful, but they are all doing the same thing, playing with one of these factors, two of these factors, some play with three, with a combination of two, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन लगे, लेकिन इश्यूज सारे ही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्लेवरली क्या किया है कि पूरे डिस्कोर्स को रियल इश्यूज के मैदान से उठाकर आर्टिफिशियल इश्यूज के मैदान में ले गए, और वो सिर्फ आइडेंटिटी इश्यूज से हमको एड्रेस करते हैं। इसीलिए जो मैंने अभी कहा था कि अगर ये कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म डेड हो जाए या हल्का पड़ जाए तो उनकी तो दुकान ही नहीं चलेगी। तो उनके इंटरेस्ट में है कि इनमें से कोई भी चीज हल्की नहीं पड़नी चाहिए। अगर इनमें से किसी आइडेंटिटी को आप लोग एज सिटीजन ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत भूलना भी चाह रहे हैं या उससे दूरी भी कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे नहीं 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 मत भूलना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि अगर तुम भूल गए तो हमारा क्या होगा? हमारा तो पूरा कारोबार तुम्हारी इसी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स पर है ना। तो वो कभी भी इन चीजों के टेम्परेचर को नीचे नहीं जाना चाहते, देना चाहते। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कैसे उन्होंने इतनी आसानी से इस डिस्कोर्स को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया और हमें बुरा नहीं लगा या हम परेशान नहीं हुए। उसकी भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि वी ऑपरेट इन अ सिचुएशन विच इज नोन एज पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो इंसान के दिमाग में इनसिक्योरिटी आ जाती है। समझ लें, हम सब इनसिक्योर हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या हालात हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो और ज्यादा इनसिक्योर हैं। हमें मालूम है कि साहब हम तो इंजीनियरिंग कर लिया हमने, लेकिन पता नहीं मेरे बेटे का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा कि नहीं होगा। मैंने मेडिकल तो कर लिया था, लेकिन मेरी बेटी पता नहीं मेडिकल कॉलेज में जा पाएगी नहीं, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतने लोग बैठ रहे हैं, बहुत थोड़ी सी सीट है, हर जगह रिसोर्सेस कम, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रोज सब लोग परेशान हो रहे हैं, आपने देखा हर चीज के लिए मारामारी है। तो उन सारी सिचुएशंस में हम सब क्या है? इनसिक्योर है। हमारे दिमाग में सवालात है, पता नहीं क्या होगा, हम सब इनसिक्योर है। अच्छा, जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आपको मैनिपुलेट करना और आसान हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे इंसान आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी की सिचुएशन। अक्सर बच्चों को एग्जांपल दिया जाता है, लेकिन ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, और एग्जांपल से बात जरा दिमाग में स्टिक कर जाती है, इसलिए एग्जांपल दिया जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि ये सब इमेजिन क्या करना, हम सब ने इसको फेस किया है। आप किसी भी शहर में रहते हो तो आपके शहर में एक दो बहुत टॉप के स्कूल हो, और एज पेरेंट्स और पढ़े लिखे पेरेंट्स हम सब का ख्वाब होता है, हम सब सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है वो इन बेस्ट स्कूल्स में से एक दो जो है उसमें पढ़े। ठीक है सर। तो अब क्या हुआ कि हमारा बच्चा 4 साल का हो गया और हमने डिसाइड किया कि हमारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो हमने पता किया साल में एक दिन कोई वो फॉर्म बांटेगा वो स्कूल, क्योंकि बड़े स्कूलों के नक्शे भी बहुत होते हैं जो टॉप स्कूल सो कॉल्ड बन जाते हैं। तो पता लगा साहब फलानी तारीख को वहां का फॉर्म बटेगा, अभी तो फॉर्म सिर्फ मिलना है। तो हम लोग गए फॉर्म लेने स्कूल का। सुबह 8 बजे से 5 बजे से लाइन लग गई। खैर साहब लाइन में खड़े हुए, जब खिड़की खुली
9 बजे या 6 बजे भी, तो हमने देखा कि वहां पर करीब 2000 पेरेंट्स, और ये सबके साथ हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, इट्स रियल लाइफ सिचुएशन। जब हमने देखा कि करीब 2000 पेरेंट्स उस लाइन में खड़े हुए, और हमें मालूम है कि उस स्कूल में सीट सिर्फ 200 है, तो 200 सीट्स वर्सेस 2000 लोग जो फॉर्म ले रहे हैं, जाहिर सी बात है सब फॉर्म जमा करेंगे, उन सबके बच्चे टेस्ट देंगे स्कूल में और फिर एडमिशन होगा। तो क्या हुआ, हमारे दिमाग में परेशानी अब शुरू हो जाती है कि यार 2000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, पता नहीं मेरे बच्चे का दाखिला होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सब परेशान। उसी बीच क्या होता है कि एक आदमी आता है और हमारी कान में कुछ कहता है कि सर अगर ऐसा है कि अगर आपको अपने बच्चे का दाखिला कराना है तो आप हमें 2 लाख रुपए अगर दे दें तो मैं करवा दूंगा दाखिला। और वह ऐसे ही वो हम में से 50 लोगों के कान में कहता है, तो क्या होता है, तो हो सकता है कि आप ना सुने, मैं हो सकता है कि सुन लूं कि यार क्या परेशानी है, आदमी इस तरह सोचने लगता है ना, यार इतने पैसे मेरे पास हैं, एक बच्चा है उसके लिए 2 लाख रुपए अगर खर्च करके एडमिशन हो जाए तो क्या बुरा है। तो इंसान टेम्प्ट हो जाता है, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उस 2000 की लाइन में 5-10 लोग ऐसे हों जो टेम्प्ट हो जाएं और दे फॉल फॉर दिस ट्रैप। मतलब एडमिशन हो या ना हो बात की बात है कि हम सब उस ट्रैप में आ जाएंगे, 5-6-7 लोग जरूर। अब हम जो 5-6-7 लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई देशद्रोही हैं, हम देश के दुश्मन हैं, कानून वायलेट करने वाले हैं, हम कोई बुरे इंसान नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, लॉ अबाइडिंग हैं, टैक्स पे करते हैं, सब कुछ सही। और हम वहां जब लाइन में गए थे तो भी हमारे दिल में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब हमने वो सिचुएशन देखी तो उस सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी ने हमें फोर्स कर दिया वो काम करने को जो नॉर्मली हम नहीं करना चाहते, लेकिन हालात से मजबूर होकर अपने बच्चे की मोहब्बत में हमने वो एग्री कर लिया कि हम तुम्हें 2 लाख रुपए दे देंगे, जो टेक्निकली हमसे आपसे पूछा जाए तो हम सब कहेंगे गलत काम है, लेकिन हमने ऐसा किया, हम ऐसा करते हैं, हम रोज कहीं ना कहीं ये चीज करते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दी, शॉर्टकट के लिए कहीं करते हैं, क्योंकि दिस इज हाउ लाइफ रन्स इन आवर कंट्री। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो जाता है। तो वो आदमी जो हमसे एडमिशन कराने के लिए कह रहा था, करा पाए कि ना करा पाए वो बात की बात है, लेकिन उसने हमें शॉर्टकट बेचा, मतलब ही इज गिविंग मी ए शॉर्टकट route to the school, which I thought in the usual course my child will not be able to enter. He is a shortcut seller. अब हम में से कुछ लोग जो वेस्ट में गए होंगे या जानते हैं, आप सबके अजीज रिश्तेदार रहते होंगे बात, जैसा हमारी बहन वहां रहती है स्वीडन में, वहां तो कभी नहीं ऐसी बेईमानी होती। अरे भाई, तो आपकी बहन स्वीडन में रहती है, जहाँ स्कूल में जब वो गई होंगी दाखिले के लिए, तो स्कूल के बाहर 5 माँ बाप खड़े होंगे और एडमिशन के लिए 50 सीट है, तो ना वहां कोई शॉर्ट सेलर आएगा, ना कोई मिडिल मैन आएगा, ना उनको जरूरत है। कहने का मतलब आप समझ रही हैं, मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हम बेईमान है हिंदुस्तान में और वो आदमी स्वीडन वाला ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं है। इंसान सब एक होते हैं। तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंसान कोई कम्युनल, बेसिकली कास्टिस्ट, रीजनलिस्ट कुछ नहीं होता है, बेईमान नहीं होता। वो हालात उसको फोर्स कर देते हैं या सर्कमस्टांसेस उसको फोर्स कर देते हैं यूजली वो काम करने के। तो अगर हम टेम्प्ट हो रहे हैं किसी शॉर्टकट सेलर से एडमिशन कराने के लिए, तो वो हालात हमें कर रहे हैं। अगर स्वीडन में हम होते, अमेरिका में, तो हम भी नहीं कर रहे होते, जरूरत ही नहीं हुआ बस। तो वो तो एक छोटा शॉर्टकट सेलर था। जो बड़े शॉर्टकट सेलर्स हैं वो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये और खतरनाक और बड़े और चालाक शॉर्टकट सेलर। ये भी हमें बताते हैं कि साहब नॉर्मल कोर्स में आपका काम नहीं होगा, आप मेरे साथ आ जाइए तो मैं आपको शॉर्टकट दे दूं। मैं बताता हूं कैसे आपको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं इलेक्शन होने वाला है, तो एक पार्टी आएगी, कहेगी साहब कि आपकी कास्ट को मैं रिजर्वेशन देना चाहता हूँ, नहीं कहती है अक्सर इलेक्शन में पार्टी, और आलोक साहब की कास्ट को देना चाहता हूँ, 2 कास्ट को देना चाहता हूँ। अब आप दोनों लोग या आपकी कास्ट के लोग एक्चुअली बहुत प्रॉस्पेरस हैं, आपके लोग बड़ी बड़ी सर्विसेज में हैं, प्रॉस्पेरस हैं, हर तरह से आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन आपने कभी सुना कि किसी कास्ट के लोगों ने कह दिया हो कि नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, आप गलत हमें दे रहे हैं, ये बगल वाले जो हैं इनकी कास्ट को देना चाहिए? नहीं, आपको लगता है अरे ठीक है शॉर्टकट मिल रहा है तो बुरा क्या है, ठीक है हम बहुत अच्छे हैं और फायदा हो जाएगा हमारा। कभी हम नहीं कहते दूसरे को दो, अच्छा उसको भी मालूम है कि दूसरे को ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसने जो कैलकुलेशन कर रखा है इलेक्शन का, उसके हिसाब से अगर आपकी 2 कास्ट उसके साथ आ जाए तो इलेक्शन जीत जाए। तो कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकल प्लेयर जो है वो किसी का हमदर्द नहीं है, उसने एक कैलकुलेशन कर रखा है, और उस कैलकुलेशन में कास्ट के बेसिस पर अगर ये 2 कास्ट उसके साथ आ जाएंगी तो वो जीत जाएगा, और आ जाती हैं और जीत जाता भी।
बात समझ रहे? तो जब आपको शॉर्टकट कोई सेल करता है या देता है, तो कभी भी आप नहीं कहते कि नहीं साहब मेरा चांस तो बहुत है और हम लोग बहुत अच्छे हैं, दूसरे को दे दो। नहीं, क्योंकि आप इतने इनसिक्योर हैं कि आप फौरन उसकी ट्रैप में आ जाते हैं। तो क्या होता है, जो कास्ट एनिमोसिटी थोड़ी बहुत कम थी या नहीं थी, वो उस प्लेयर ने जब ये खेल खेला तो और बढ़ गई। उसी तरह कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो कहता है कि इस धर्म के लोग मेरे साथ आ जाए, इनके लिए मैं बहुत काम कर रहा हूं, तो वो उस धर्म के लोगों का वोट चाह रहा है, इसलिए वो उस तरह से उनको कंसोलिडेट करा। लेकिन उसमें एक चीज इनहेरेंट है, हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बिलोंग टू द अदर रिलीजन, क्योंकि जब तक वो ए वर्सेस बी की सिचुएशन नहीं आएगी, वो पोलराइजेशन नहीं होगा और उसको वो पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा जो हो जाता है। So political parties would keep on dividing us on these issues and we are readily divided because we are insecure. तो इनमें से किसी भी प्रिटेक्स्ट पे जैसे ही हमको कोई शॉर्टकट ऑफर करती है पॉलिटिकल पार्टी, हम इमीडिएटली उसकी ट्रैप में आ जाते हैं और हम फौरन उसकी बात मान लेते हैं। आमतौर से, मतलब ये बात जनरल टर्म्स में हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई कैसा मैं तो नहीं सुनता इसको, मतलब दिस इज व्हाट हैपेंस। तो क्या होता है कि इस पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी की सिचुएशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स मुस्तकिल चलती रहती और ये इनका टेम्परेचर नीचे नहीं आता। एक दूसरा एक और आर्गुमेंट इसमें मैं आपको देता हूं, वो आइडेंटिटी के की अहमियत पे है। देखिए ऐसा है, कोई भी स्टेट होता है, इंडिया तो अभी हम 70 ही साल हुए आजाद हुए, तो इतनी पुरानी बात नहीं हुई, बट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन विच दीज आइडेंटिटीज शुड स्लोली गो डाउन or get mellowed down, and the identity which should be the primary identity is the national identity. हमारे देश में अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए नेशनल आइडेंटिटी प्राइमरी हो। अगर मैं आपसे ये नहीं बात करता तो अक्सर हम में से लोग बात करते हैं ना, किसी आदमी से पूछिए आप कौन है, तो उसको अपनी कास्ट आइडेंटिटी पे बड़ा गर्व है तो वो बताएगा मैं फला कास्ट का। किसी को अपनी धार्मिक आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है तो वो उसको परेड करता है पब्लिक स्पेयर। कोई अपनी कोई दूसरी आइडेंटिटी लाता है। नेशनल आइडेंटिटी जो है यूजुअली प्राइमरी नहीं होती आमतौर से, जो कि होनी चाहिए। अच्छा, उससे प्रॉब्लम क्या है, जब हम में से किसी के लिए भी कोई दूसरी आइडेंटिटी प्राइमरी होती है तो हम दुनिया को उसी चश्मे से देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए रिलीजियस आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कहने को तो रिलीजियस आइडेंटिटी है, लेकिन जो चश्मा हमने लगाया है वो कम्युनल आइडेंटिटी का है। तो हम समाज को उस चश्मे से देख रहे होते हैं और हमको समाज में वो डिवीजन नजर आ रहा होता है, और हमारे अंदर हमारा जो भी एक्शन पब्लिक स्फीयर में होता है वो उस डिवाइसिव टेंडेंसी से गवर्न होता है। बात समझ रहे? उसी तरह अगर हमारे ऊपर कास्ट का चश्मा है तो हम समाज को जब देख रहे होते हैं तो उस डिवाइसिव चश्मे से देख रहे होते हैं, तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी काबिलियत सब बेकार हो जाती है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल ये कि जब इलेक्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल, तो इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा है फॉर एग्जाम्पल जिसने 5 मर्डर किए हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन वो हमारी कास्ट का है, तो क्या होता है, पीएचडी वाला, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, रिक्शे वाला, सब उस आइडेंटिटी के बेस पर उसको वोट देते हैं। उसमें पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम सब की आंख पे वो वाला चश्मा है, तो हमें उसका मर्डर, उसका क्राइम कुछ नजर नहीं आ रहा है, हम तो अपने आदमी को वोट दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब इतनी अकल होने के बाद, सारी रैशनैलिटी होने के बाद, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। और हमारे लिए बड़ा आसान है, और हम सबके लिए आमतौर से आसान है, कि हम अपनी कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पर वोट करें। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज उसी बेस पर टिकट देती। आज अभी आप रोज डेटा आता रहता है कि 38% या 40% पार्लियामेंट में जो लोग हैं उन पे सीरियस क्रिमिनल केस। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि आपको उनके केस से और उनके क्राइम से, उनके रिकॉर्ड से फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप तो आइडेंटिटी को वोट कर रहे हैं, तो उनको जो कैंडिडेट उस आइडेंटिटी का सबसे बड़ा बाहुबली लगा, उनको उन्होंने टिकट दे दिया, कोई भी पार्टी, और हमने उसको इलेक्शन में वोट भी दे दी। वहां समझ, बात वहीं आ रही है कि इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सेकुलर वर्ड एक्चुअली में पसंद नहीं, क्योंकि सेकुलरिज्म क्या कह रहा है, टू फोरग्राउंड रैशनैलिटी। अब आप इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में, हम सब छोड़ दीजिए, मेजॉरिटी लोग अगर वो चश्मा लगाए हो जो रैशनल हो, 2+2=4, तो हम फौरन देख लेंगे कि साहब ये 3 तो कैंडिडेट मैडरर है, किसी भी पार्टी को, उन्हें तो हमें वोट देना नहीं है, हमें तो मेरिट देखनी है, कौन सा अच्छा कैंडिडेट। किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन पे जा रहे हैं तो 5 कैंडिडेट है, साहब ये वाला सबसे अच्छा है। अब वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का, हमसे क्या मतलब। तो क्या होगा, अगले ही इलेक्शन में कोई पार्टी किसी मर्डरर को, किसी क्रिमिनल को, किसी रेपिस्ट को टिकट नहीं देगी, तो जान जाएंगे कि साहब आपको मेरिट चाहिए। तो
कहने का मतलब ये एक बड़ा विशिष्ट सर्कल है, इसमें सिर्फ गलती पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, हमारी भी है, क्योंकि हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम कल रिफ्यूज कर दें तो वो फिर वही पार्टीज अच्छे कैंडिडेट्स लाएंगी, वही पार्टीज अच्छी बात करेंगे, वही पार्टीज सड़क और बिजली और पानी और रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, लेकिन हम क्योंकि उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वही काम कर रहे हैं जो बहुत आसान है। क्योंकि इस मैदान में सिर्फ स्पीच देनी है, काम कुछ नहीं करना है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपको हमारी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करना है। इमोटिव पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। आइडेंटिटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है, हमको खुश करना है और हम उस पर वोट दे देंगे। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कोई काम करने। इंटरेस्टिंग बात है कि हम उनसे चाहते भी नहीं कि कोई काम करे, हमको तो अपनी आइडेंटिटी का जो एक फैक्टर है उसको सेटिस्फाई करना है। मतलब बात इमोशन से हो रही है। अब दो चीज आपके फैकल्टी, एक इमोशन है आपका, एक आपका दिमाग है। पॉलिटिकल पार्टी आचार्य आपसे, आपके दिमाग से बात ही नहीं कर रही, वो तो आपके इमोशन से बात करना चाह रही। वो चाह रही है दिमाग को जरा आप रेस्ट दें, उसका इस्तेमाल ज्यादा यहाँ ना करें, इमोशन से बात करें, और वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको दे रही है, आप खुश हो रहे। अगर इससे बात हो रही होती तो आप रैशनैलिटी से बात कर रहे होते, वो परेशानी होती जो इस मैदान में। तो पॉलिटिकल पार्टीज विल never want that the discourse should shift from this field to this field, because this is a very dangerous field for them. And that happens everywhere in the world. दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसीज में भी आप देखें तो टेम्पटेशन पॉलिटिशियन को होता है कि इस डिस्कोर्स को यहां से यहां शिफ्ट करे, क्योंकि ये मैदान उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जागरूक लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, तो वापस खींच के यहाँ लाते हैं कि नहीं भैया ये छोड़ो, तुम बताओ हमारे लिए क्या कर रहे हो, व्हाट अबाउट आवर टैक्सेस। इसका क्लासिक एग्जाम्पल अमेरिकन पॉलिटिक्स में ट्रंप है। कि अमेरिका जैसा कंट्री, दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है, था तब भी आज भी है, वहां पर ट्रंप ने एक थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लम्प आया 2008 के बाद इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक परेशानी आई और थोड़ी सी स्कैरसिटी समाज में आई जो हमसे बहुत कम थी। उसने उस एंग्जाइटी को एक्सप्लॉइट करके इस तरह की इमोटिव पॉलिटिक्स शुरू की कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। आप देखिए कि इमोटिव पॉलिटिक्स का स्लोगन अगर अकल से इस्तेमाल करें तो 1 मिनट में एक्सपोज हो जाता है। आज भी वही स्लोगन वो दे रहा है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका एक्चुअली इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट पावरफुल, द रिचेस्ट। तो जो सबसे पावर, जैसे आपके कोई बच्चा कहे कि जो टॉपर को, इसको टॉपर को और अच्छा टॉपर बनाना है, तो आप कहेंगे क्या बेवकूफी की बात है भाई, ये तो बच्चा टॉपर ऑलरेडी है क्लास में, इससे ज्यादा टॉपर क्या बनाना है, टॉपर तो टॉपर ही रहेगा। लेकिन वो वही बात कह रहा है और काफी लोग उस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो वही जो मैंने बताया था आपको, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। पिछली बार उसने पूरा ये कहा था कि सारे एक्सपैट्रिएट जो बाहर से आए, इंडियंस हो, यहाँ वहां के सारे लोगों को बाहर निकाल दूंगा, ये सारी जॉब्स अमेरिकन को दे दूं। अब वो अमेरिकन, अब देखिए इसमें आदमी अकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। वो सारे अमेरिकन जो हाई स्कूल पास हैं, और आपको पता है इंडिया के लोग कितने पढ़े लिखे अमेरिका के अंदर हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए अमेरिका में तो 4-5 डॉक्टर इंडिया के तो मिलने जरूरी है। नासा में 38% इंजीनियर्स इंडियंस हैं, और ट्रंप कह रहा था कि उन सबको निकाल के अमेरिकन को रख देगा। अब वो बड़े खुश हो रहे थे, वोट भी दे रहे थे उसको, और फिर देंगे इस बार वो। अब आप सोचिए कि वो हाई स्कूल फेल लोग वो उस इंजीनियर, उस डॉक्टर और साइंटिस्ट की जगह ले सकते हैं, लेकिन इंसान को कितना अच्छा लगता है। देखिए इमोशनल पॉलिटिक्स कितनी सेटिस्फाइंग चीज होती है। बस जैसे हम, आप मेच्योर हैं, हम आप तो खैर टीचर हैं, इसलिए किसी पेरेंट का बच्चा फेल हो जाए तो उसको कोई आके बताता है, उसका दोस्त कि साहब आपका बच्चा जो फेल हुआ है वो एक्चुअली बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, वो टीचर गड़बड़ है। और टीचर अगर डिस्क्रिमिनेटरी बात कह दी तो और अच्छी बात है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है ना। क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता ये समझना कि मेरा बच्चा खराब है। तो टीचर खराब है, स्कूल खराब है, सब खराब है, मेरा बच्चा अच्छा है। तो यही लॉजिक, यही साइकोलॉजी वहां भी काम करती है कि हम सब अच्छे हैं, हमें जॉब मिलना चाहिए, और हमें, हमारी ये चीज है, दूसरे को कैसे मिले। और जब आपके अंदर ये चीज क्रिएट कर देता है पॉलिटिशियन कि सब आपका शेयर दूसरों ने ले लिया है, तो आपको लगता है कि साहब ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है, वो हमारा रियल हमदर्द है। तो क्या हुआ, ट्रंप इलेक्शन जीत गया तो 4 साल में क्या उसने सारे इंडियंस को बाहर निकाल दिया? नहीं निकाला ना, क्योंकि अमेरिका नहीं चल पाएगा अगर उनको निकाल दें। लेकिन उसका इलेक्शन तो जीत गया ना वो, उसने जो इमोशंस ट्रिगर कर दिए लोग। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इन इंडिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। It's not that politicians are going to change anything drastically, but they are able to rouse your emotions, unite you on a certain emotional and identity issue, and get your votes. And that's what basically they want. So that is the basic issue in a country like India, and that is the reason why the constitutional value of secular or secularism is so very important. तो आप इसकी इंपॉर्टेंस अब समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड लिखा है उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इमेजिन कीजिए कि हमारे देश का हर इंसान
या मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर 50% भी उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें तो चीज पूरे देश का की पिक्चर कितनी चेंज हो जाएगी। इन एवरी स्फीयर यू वुड बी लुकिंग एट थिंग्स रैशनली आउटसाइड योर हाउस। घर के अंदर जो चाहिए कीजिए, लेकिन घर के बाहर जैसे आप निकले हर चीज रैशनली देखी जाएगी, ये सही है और ये गलत है। देयर विल बी नो कंफ्यूजन एंड देयरफॉर life would be easy for us and that would be good for the country. But that is something which takes time. उसका वक्त लगता है, धीरे धीरे लोगों की समझ में बात आती है और फिर लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो फिलहाल तो हम उस जर्नी में हैं कि हम अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए जहां पर हमें पहुंचना है एज ए नेशन स्टेट। एनीवे, I want to leave some time for your discussion also, so I'll stop here. There were very provocative points deliberately made so that it elicits a lot of questions and comments from you. तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, अब आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स लेते हैं और फिर उस पर डिस्कशन आगे बढ़े। ठीक है, तो आप में से जिसको कुछ कहना है वो बोलिए। एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट व्हाटसोएवर बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो अदरवाइज तो मेरे पास बहुत सी बातें करने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा था आपकी भी सुन लो जिससे कि उसको रिस्पॉन्ड करें। तो जी बोलिए सर। जी या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Yeah, Dr. Malik this side. Actually, sir, there are 2 or 3 questions in my mind. First thing is, you were talking about the term secular, right? So the question is that the Constitution of India came into force on 26 January 1950, including the preamble of the Indian Constitution. But the term secular basically is mentioned by 42nd Amendment 1976. So whether, during 26 years we were not secular or the Constitution were not secular, or if the Constitution, was secular, so why this term basically, insert in the preamble of the Indian Constitution? दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू टू अंडरस्टैंड। मैंने थोड़ा सा उस पर टच किया था उस वक्त। देखिए, यही तो मसला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, हमारे फ्रेमर्स थे, वो लोग पॉलिटिशियन नहीं थे। दे वर वेरी लर्नेड पीपल एंड दे हैड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू देयर हार्ट। उनको इलेक्शन नहीं लड़ना था, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया उसका रूट और बेसिस सेकुलरिज्म था। जैसे मैंने बताया कि हर आर्टिकल चीख चीख के कह रहा है कि आई एम रैशनल, आई एम लॉजिकल। ठीक है, उन्होंने ये जरूरत नहीं समझी कि सेकुलर वर्ड वहां लिखें। अब आपको पता है देश की पॉलिटिक्स कैसी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी लगा कि हम ये वर्ड डाल दें तो शायद हमें फायदा हो जाए, तो उन्होंने बाद में वर्ड डाल दिया, फिर उस पर डिस्प्यूट होने लगा। कोई पार्टी कहने लगी कि आपने बाद में डाला, इसका मतलब पहले नहीं था। आप बात समझ रहे हैं? मतलब एक सारी बात आपका ध्यान बटाने के लिए कोई दूसरी चीज शुरू हो गई, जो एक बहुत ही नीडलेस डिस्कशन है। समझ रहे हैं? वो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, दैट देयर वर सम पॉलिटिकल रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच लेटर ऑन इट वाज इंक्लूडेड, देयर वाज नो नीड। But the point is that whether that word is there or not, that is not important. मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो ही नहीं वहां पर। बात समझ रहे हैं? ब्रिटेन के अंदर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसका हेड होता है बादशाह। मतलब ऑफिशियली ब्रिटेन इज ए क्रिश्चियन कंट्री, लेकिन इन प्रैक्टिस ब्रिटेन इज सेकुलर। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मेरा मतलब यहाँ है कि लिखने, हमारे हर चीज होता ना, ये कहाँ लिखी है, रोज बहस होती है अखबार में, ये चीज कहीं नहीं लिखी है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी रोज नेता लोग लड़ते रहते हैं क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ब्रिटेन में तो कुछ नहीं लिखा है, वहां पे कहीं नहीं लिखा है कि लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी जो हाउस ऑफ कॉमन्स में होगी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर हमारे यहाँ ना लिखा हो तो कल सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाएगा कि ये सब कैसे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब कोई अकल का इस्तेमाल नहीं करेगा कि भैया सबसे ज्यादा सीट मेरे पास है तो प्राइम मिनिस्टर आप बनेंगे। एक लॉजिकल भी बात होती है। तो हमारे यहाँ लॉजिकल बात कोई नहीं समझता, हर चीज क्या लिखा है, जिसको कहते हैं फॉर्मलिज्म। तो जो डेवलपिंग सोसाइटी होती है वहां हर सारा जोर फॉर्मलिज्म पे होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप टीवी डिबेट नहीं देखते, एक आदमी दूसरे से कह रहा हो तुम ये बोलो भारत माता की जय, तुम ये बोलो फलाने मुर्दाबाद। अरे भाई, अगर मैं कोई चीज बोल दूं नहीं बोल दूं उसका मेरी कंडक्ट से क्या ताल्लुक। बात समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर टी शर्ट लगा लूं आई लव इंडिया और रोज क्लास एक भी ना लूं, और आप आई लव इंडिया बना दें, लिख दें और बालू का पुल बनाएं और रोज वो गिरे, तो हमारे ये लिखने से कोई फर्क पड़ रहा है?
तो शर्ट पर आई लव इंडिया लिखने से अच्छा कि दिल में ये होना कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सारा जोर इस पे फॉर्मलिज्म पे हो जाता है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इसलिए मैंने कहा उसको आप उस चक्कर में ही नहीं पढ़ना, आपको कब लिखा क्या लिखा वो इंपॉर्टेंट ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इम्ब्यूड इन एवरी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज द रीजन। जो सारी बात मैंने आपसे करी वो उस लॉजिक को एक्सप्लेन किया कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज और क्यों एज सिटीजंस ऑफ इंडिया इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ऑफ देम, ऑल वर्ड में यूज कर रहा हूं तो उसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं, सबको ये चीज ज्यादा पसंद नहीं, इसीलिए दे ट्राई टू डाइग्रेस द डिस्कशन फ्रॉम द मेन थिंग टू समथिंग सब्सिक्वेंट। दैट इज द मेन थिंग। या अगर लिखने की हम बात करते हैं तो जैसे हमने पढ़ा है कि एक केस आया था सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जी और ये 1954 आई थिंक का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियरली कह दिया था कि वॉट एवर द टर्म इज नॉट इंक्लूडेड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सेकुलर, बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर बिकॉज Article 25 to 28, it is clearly said that right to religion is a fundamental right. So उसके बावजूद भी वो मेरा सवाल एक्चुअली सर इसलिए है क्योंकि 1976 में लोगों ने इस पे डिबेट करके इसको इंक्लूड कराया, बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम से इस मुद्दे को लेके दोबारा से लोग आए हैं कि भाई सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म को यहाँ से हटाओ। वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि टर्म के लिखने से और न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही तो चक्कर है ना कि पॉलिटिशियंस ये चाहते हैं कि आप इस चक्कर में, इस ट्रैप में रहें। बात समझ रहे हैं? जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम सब ऑनेस्टी की टी शर्ट पहन लें तो ऑनेस्ट नहीं बन जाए। ऑनेस्टी इज समथिंग एल्स, या कोई भी वैल्यू जो है वो अलग चीज होती है, उसको लिखने से न लिखने से दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे वांट अस टू बी ट्रैप्ड इन दैट डिस्कोर्स। आप आज देख लें कि कहीं भी जो डिस्कोर्स पब्लिक स्फीयर में हमारे मुल्क में होता है, सारा डिस्कोर्स जो है वो गलत चीज पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि दे वांट टू प्रेजेंट दीज थिंग्स एज द रियल थिंग। जो असली खेल है वो कुछ और है, लेकिन दूसरी चीज आपको दिखाई जा रही है और आप सब उसमें ट्रैप्ड है। आधा आदमी इधर है, आधा आदमी उधर है, या कुछ लोग साइलेंट है, बट दैट इज नॉट द रियल थिंग। इवन इफ यू रिमूव द वर्ड्स सोशलिस्ट, जैसे आप कह रहे हैं वर्ड सोशलिस्ट हटाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की अगली लाइन है वो कह रही है टू एस्टैब्लिश जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या है? यही तो सोशलिज्म है। लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा सोशलिज्म वर्ड हटाने से, तो उसको लग रहा है कि इस पे झगड़ा शुरू कर दो। किसी और को किसी चीज से फायदा होगा तो उसका झगड़ा शुरू कर दो। तो किसी वर्ड को हटा दो या सारा कॉन्स्टिट्यूशन। वही तो मैंने कहा, ब्रिटेन में तो एक वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सब काम चल रहा है कि नहीं? एक मैच्योर आदमी के अंदर समझ भी तो होती है, दिस इज हाउ थिंग्स हैव टू रन इन द कंट्री। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इतना छोटा सा है, 200 साल में 25 से 26 अमेंडमेंट हुए हैं। हमारे यहाँ 100-150 अमेंडमेंट हो गए, डेली अमेंडमेंट ही होता रहता है। तो अमेंडमेंट करने से क्या हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा? स्कूल के गेट पर लिख दिया जाए कि सारे टीचर बड़ी ऑनेस्टली पढ़ाएंगे तो क्या सब पढ़ाने लगेंगे? जब तक कि हमारे दिल में ये बात नहीं होगी कि हमारी ड्यूटी है अच्छे से पढ़ाएं। तो फॉर्मलिज्म जो है ना, दिखावा या किसी चीज को फॉर्मली कर देना, उससे कुछ नहीं होता अनलेस वी चेंज एज ह्यूमन बीइंग्स, आइदर इन द क्लासरूम और एज टीचर्स और व्हाटएवर, एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री। एक सर मेरा और एक जैसे आपने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी जो अच्छी है उसको वोट दें, ठीक है, और चूज करें। तो मेरा इस पे ये सवाल नहीं है सर, बट मेरी ओपिनियन है कि हम पॉलिटिकल पार्टी देख के वोट क्यों दें, हम आदमी देख के वोट देना कि हमको कौन सा मेंबर चुनना है। पॉलिटिकल पार्टी डजंट मैटर, हमें तो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोकसभा में भेजना चाह रहे हैं वो आदमी कैसा है वो देखना मेरी ओपिनियन है ये कि वो ज्यादा जरूरी है। आपकी ओपिनियन बिल्कुल सही है, वही बात तो मैं डिस्कस कर रहा था कि ओपिनियन आपकी जो है वो फैक्ट में तब बदलेगी जब हमारी आंख पे जो चश्मा है वो ठीक होगा ना। जब चश्मा खराब होगा तो सामने वाली चीज नजर नहीं आएगी। हाथी खड़ा है, घोड़ा नजर आ रहा है क्योंकि चश्मे ही गड़बड़ है। तो मसला ये है कि जब अगर यही तो दुनिया में होता है भाई, इलेक्शन क्यों होता है कि 4 कैंडिडेट आपके सामने, जैसे आप इंटरव्यू लेने गए कहीं तो 4 कैंडिडेट है, तो आपको क्या क्यों भेजा गया है वहां कि आप देखें कि 4 में से सबसे अच्छा कैंडिडेट क्यों है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक आदमी जो कम्युनलिज्म या कास्टिज्म से ग्रस्त है वो जाकर गलत कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट करता है और फिर अपने जैसे लोगों में आके कहता है कि मैंने आज अपनी कास्ट या धर्म के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, एक गधे को अपॉइंट कर दिया, है कि नहीं?
तो क्यों है कि हम गलत काम करके भी खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि वही चश्मा सही है। तो पॉइंट ये है कि हमें उस चीज को चेंज करना है। कब चेंज होगी? जब हमारे अंदर हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो है, जो रैशनल है, वो प्राइमरी आइडेंटिटी होगी। उस चश्मे से आप देखेंगे तो आपको सही बात है, जो सबसे अच्छा कैंडिडेट उसी को वोट देना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट दैट विल हैपन ओनली व्हेन वी आर थिंकिंग इन द राइट वे। दैट इज नॉट देयर इन जनरल। मतलब जनरल टर्म से बात हो रही है, मेरी आपकी नहीं बात थी। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आई एग्री विद यू, बट जो सिलेक्शन प्रोसीजर या सिलेक्शन की बात है तो उसमें आजकल तो जो मैंने देखा है, एक्चुअली आई आल्सो awarded junior research fellowship. I did my PhD from Jamia Millia Islamia, right? तो मैंने जो देखा है, जैसे कास्ट तो एक अलग मैटर हो गया। आजकल तो जब इंटरव्यू देने हम जाते हैं तो कहीं पे वाइस चांसलर के लड़का है तो उसका सिलेक्शन होना है, कहीं डीन का लड़का है तो उसका सिलेक्शन होना है, कहीं रजिस्ट्रार का बेटा है तो उसका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो आजकल तो ये भी बहुत चल रहा है। तो जो जो कैंडिडेट एक्चुअल में डिजर्व करता है उसका नहीं होता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं जामिया की बात करूं, लॉ डिपार्टमेंट में, तो रजिस्ट्रार का बेटा था, ही वाज द बॉटम इन द लिस्ट। सर सर एक सर मिनट, हाँ, मुझे और साहब एक मिनट रुकिए जरा। संजय साहब कुछ कह रहे हैं, आप इनका भी मौका दे दें। संजय साहब बोलिए। मैं सर डिस्टरबेंस के लिए तो क्षमा चाहूंगा, नहीं, बोलिए लेकिन बोलिए। लेकिन प्रोफेसर हमजा जैसे आज बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि एफडीपी का एक मकसद जो होता है ना, कि आदमी का दिमाग खुल जाना चाहिए। छोटे छोटे जो बंधन लोगों ने बांध दिए हैं ना, चश्मे जो लगा दिए हैं, वो चश्मे हट जाने चाहिए। उसका एक बहुत बढ़िया सा आइडिया सचमुच आपने दिया, और जो मेरे साथी सब यहाँ सुन रहे होंगे उनमें यकीनन कोई ना कोई बदलाव अब आ जाएगा। मेरा तो केवल इतना निवेदन है आपसे कि कभी शिक्षा व्यवस्था को लेके और आप कहीं बोल रहे हो तो प्लीज आप लिंक जरूर शेयर कर देना। मैं शिक्षा व्यवस्था को लेके, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है कायदे में, वो कई बार मुझे बहुत कचोटती है अंदर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उसका पार्ट है, और उसका पार्ट होने के बावजूद भी उतना बदलाव नहीं कर पा रहे हैं जो बदलाव सचमुच हमें करना चाहिए था। अब वो व्यवस्थाओं की वजह है या सरकार की है या उसमें स्टेट उसमें कहीं आता है, वो बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर कहीं ऐसी वार्तालाप की बात होती है तो सर प्लीज शेयर द लिंक टू मी। जी बिल्कुल संजय साहब, बिल्कुल, डेफिनेटली, थैंक यू। हाँ, वो जो आप बात कह रहे थे, सर एक्चुअली मुझे पूछना नहीं चाहिए था इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सर रियलिटी में आजकल जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें यही है कि भाई कहीं वाइस चांसलर का लड़का है, कहीं डीन का लड़का है, कहीं रजिस्ट्रार का लड़का है। आप एक मिनट, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए ऐसा है कि जो असल में टाइम इतना कम होता है, देखिए सारे नॉन रैशनल कंसिडरेशन ये भी है। मैं रिलीजन के बेस पर आपको सेलेक्ट करूं, वो भी नॉन रैशनल है। कास्ट के बेस पर करूं, वो भी नॉन रैशनल है। रीजन के बेस पर वो भी नॉन रैशनल है। और पैसा लेके करूं करप्शन में, वो भी नॉन रैशनल है। और रिश्तेदारी और नेपोटिज्म करूं, ये सारे नॉन रैशनल चश्मे। क्या होता है जब नेशन बिल्डिंग नई प्रोसेस पे पहुंचती है तो सारे चश्मे हटते जाते हैं, और जो मेन चश्मा आपकी आंख पे आता है वो होता है नेशनल चश्मा। अच्छा, नेशनल चश्मा क्या है? दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन फर्स्ट। जब इंडियन सिटीजन मैं फर्स्ट होऊंगा तो मेरी सारी आइडेंटिटी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो कोई परेशानी नहीं, सबकी होती है 8-10 आइडेंटिटी, कोई मसला ही नहीं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज आज दुनिया में आप देख रहे हैं, मैंने अमेरिका के बहुत नेगेटिव एग्जांपल्स भी दिए, उन सारे कंट्रीज में क्या है? हमारे यहाँ लोग कहते हैं डाइवर्सिटी बहुत है, अमेरिका में हमसे 10 गुना ज्यादा डाइवर्सिटी। लेकिन मसला क्या हुआ कि वो लोग जो नेशनल ग्रोथ हुई, तो वो लोगों के अंदर वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी आई कि वो सारी आइडेंटिटीज यूजुअली आमतौर से नीचे चली गई और प्राइमरी आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी हुई। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल अमेरिका का दूं। 1965 में अगर ओबामा के फादर किसी रेस्टोरेंट में जाते तो उनको मार के भगा देते कि यू आर अ ब्लैक पर्सन, गेट आउट। उसको कॉफी भी नहीं मिलती वॉशिंगटन में। वो आदमी कभी सोच सकता था कि अगले 40 साल में उसका बेटा इस देश का, जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और जिसका सबसे पावरफुल पोस्ट है, उस पर इलेक्ट होगा प्रेसिडेंट? बात समझ रहे हैं? ये कैसे चेंज आया? ये चेंज जब आया जब अमेरिकन ने ये समझ लिया कि हमारे इंटरेस्ट में, हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट ये है कि हमारे देश का प्रेसिडेंट वो आदमी हो जो सबसे अच्छा है, काला हो, गोरा हो, हरा हो, नीला हो, उससे मतलब ही नहीं। आप बात समझ रहे? देखिए कितनी हमारी बेवकूफी की बात। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बुरा मत मानिएगा कोई, मतलब ये जस्ट एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कास्ट है और मलिक साहब, औसाफ मलिक साहब को मुझे लगता है कि ये तो, इनके हाथ का तो मैं पानी भी नहीं पी सकता, ये तो मेरे लिए इंफीरियर है।
और इनसे मैं बात भी नहीं करता। कल मुझे कोई बहुत सीरियस हार्ट का ऑपरेशन कराना है और जब मैं एम्स में पहुंचा तो मुझे बताया गया कि साहब 3 डॉक्टर हैं आज ड्यूटी पर, 2 तो वो हैं जो बैकडोर से आए हैं, आपकी अच्छी कास्ट के आप वाले हैं, और एक साहब जो अनटचेबल हैं, जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, वो मलिक साहब हैं। अब आपको सर ऑप्शन है किससे ऑपरेशन कराएं, तो मैं क्या करूं? मैं कहूँगा नहीं यार वो तो बेकार की बातें थी, वो औसाफ साहब से कहो वही ऑपरेशन कर। मतलब जो औसाफ साहब मुझे छू नहीं सकते थे, जिनका छुआ पानी नहीं पीता, वो मेरा दिल भी छुएंगे और मेरा ऑपरेशन भी करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब है कि मेरे लिए तो बेस्ट डॉक्टर और देश के लिए सबसे बुरा डॉक्टर। जब मैं अपना ड्राइवर चुनूं तो बेस्ट ड्राइवर हो, किसी भी तरह का हो, मेरी गाड़ी सेफ होनी चाहिए, मैं सेफ होना चाहिए। और देश को चलाना हो तो मैं कहूँ मेरी कास्ट का, मेरे धर्म का, मेरी लैंग्वेज का ड्राइवर हो। तो इससे बड़ी बेवकूफी हो सकती है? अमेरिकन ने ये बात समझ ली कि मेरा काम भी सबसे अच्छा हो, देश का भी सबसे अच्छा हो। तो उन्होंने ये कहा कि साहब मेरी गाड़ी का ड्राइवर बेस्ट, मेरा डॉक्टर बेस्ट और मेरे देश का भी डॉक्टर बेस्ट। आप बात समझ रहे हैं? ये सब चश्मे की बात है कि कैसे इंसान की सोच चेंज होती है। तो हम लोग सही मानों में सेल्फिश भी नहीं, और अमेरिकन को सेल्फिश कहते हैं। हम तो बेवकूफ हैं कि हम ऐसा नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट ले रहे हैं जिससे हमारा भी नुकसान हो रहा है। वो गलत आदमी होता है तो रोड भी खराब होती है, हॉस्पिटल भी खराब होता है, दवाई भी ठीक नहीं मिलती, नौकरी भी नहीं मिल रही है, हम मर भी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, हमारा आदमी है। अरे तुम्हारा आदमी होने से क्या फायदा जब कोई चीज हो नहीं रही? तो हम इतने ज्यादा, अच्छा वो हमको उस आइडेंटिटी से ऊपर नहीं उठने दे रहा है क्योंकि वो एक इमोटिव चीज है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अर्नेस्टो लैक्लाउ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये जो इश्यूज हैं कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, रीजन के, इनको कहता है एम्प्टी सिग्निफायर। एम्प्टी सिग्निफायर का मतलब होता है एक बलून नहीं होता, छोटा बच्चा अगर घर में लेटा है एक 6 महीने का, तो आप बड़ा सा बलून लाते हैं, उसको फुला के उसको दे देते हैं, बड़ा बच्चा बड़ा खुश होता है, बड़ा खूबसूरत बलून है। तो बच्चे को लग रहा है इतना बड़ा खिलौना मिल गया, लेकिन आपको पता है कि खिलौना इतना बड़ा है, उसके अंदर सिर्फ हवा है। तो वैसे ये इश्यूज हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत हमें लगते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज फुला फुला के हमारे सामने उड़ाए हुए हैं ये गुब्बारे, और हम सब बड़े खुश हो रहे हैं। एक्चुअली इस गुब्बारे में कुछ नहीं, सिर्फ हवा है, लेकिन हमें लग रहा है कि बड़ा खूबसूरत। तो हमको इन एम्प्टी सिग्निफायर को समझना है, समझ रहे हैं? जिस दिन हम समझ जाएंगे, हम इसकी हवा निकाल देंगे और कहेंगे भैया इसको हटाओ, और यही पार्टीज और यही लीडर्स हमारे सामने सही चीज देंगे। तो उनकी बुराई कुछ नहीं है, हम क्योंकि नकली दवा खा रहे हैं तो हमें नकली दवा मिल लेगी, अगर हम डिसाइड कर लें हमें नकली नहीं चाहिए तो असली वाली मिलेगी। तो दे विल सर्व अस द राइट थिंग्स ओनली व्हेन वी डिमांड द राइट थिंग्स। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। Thank you, sir. Such a wonderful lecture. Thank you. Anybody else has anything to say? कोई और किसी के पास कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज कहिए। तो चलिए साहब, if nobody has anything to say, I think by the end of the day you are all tired. So thank you very much for being here and being a patient rather audience, and it was nice interacting with you. So thank you all, and I take leave. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank थैंक यू सर, थैंक यू। Thanks a lot.